दिस वॉज द होमवर्क गिवन टू यू, लेकिन मैं यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रीज़न कि इस फॉर्मूले का, इस एक्सप्रेशन का हम यूज़ करेंगे आगे जब हम लेंस मेकर्स फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर इसका डेरिवेशन आपने ऑलरेडी अपने होमवर्क में किया हुआ है, बट चेक वेदर यू हैव डन दिस एक्सप्रेशन करेक्टली और नॉट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे आप इसको डिराइव करें। आई विल ड्राइंग द डायग्राम अगेन, बट लेटर ऑन I will use this diagram only. For the convex surface, this was the convex surface. Okay, I am drawing it again. This is the principal axis. Here refractive index is N2 and here the refractive index is N1. This is denser medium. N2 is greater than N1. Okay, this is the object placed in the denser medium. This is the object placed in the denser medium. Now this is the incident ray which gets incident at the point M. Draw the normal at this point. This was the normal drawn and this normal strikes at the point C, center of curvature. ये center of curvature होगा इसका. Now this light ray will not go straight. When it moves from denser medium to rarer medium, what will happen? This light ray will bend away from the normal, so it will not go straight. It will not go straight. It moves away from the normal, and this is the image. Okay, this is O dash. Now the angle normal and incident ray, angle of incidence I, and the refracted ray and the normal, this is the normal, makes an angle R. Okay, this alpha, it is beta and it is gamma. Diagram is almost same. See, okay, so I will rub this diagram. We will use the same diagram. Now this is the diagram. First of all, we will use the same procedure. For the smaller angles, tan alpha is MO dash perpendicular upon base O dash O. See this triangle. Tan beta MO dash upon O dash C. Tan gamma MO dash upon O dash I. Okay, if angles are small, then we can use tan alpha as alpha, tan beta as beta, tan gamma as gamma. Now use mathematical relation for the triangle. Same process we will adopt here also. So if you will use the same process, then see, beta can be written as I plus alpha. Beta can be written as I plus alpha. Okay, see, beta I plus alpha, or I can be written as beta minus alpha. Okay, I can be written as beta minus alpha. Next, see this triangle, bigger triangle. This is the exterior angle so formed. R is equals to beta plus gamma. R is equals to beta plus gamma. These are the equation number 2. Now put the value of I and R in the Snell's law. Now what is Snell's law? Snell's law is, here the light is moving from denser to rarer, that is sin I upon sin R can be written as
R is the angle of refraction, R is the angle of refraction is equals to जिस मीडियम में एंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा। किस मीडियम में एंटर कर रही है, किस मीडियम में एंटर कर रही है, N1 फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है, इट विल बी रिटन एज N1 अपॉन N2। ओके, क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, जिस मीडियम में जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में आएगा N1। फॉर स्मॉलर एंगल्स दिस कैन बी रिटन एज I, this can be written as R. So N1R can be written as N2I. This is equation number 3. Now put 1 and 2 in equation number 3. 1 और 2 को equation number 3 में रखिए। अगर आप सबसे पहले I और R is equals to beta plus gamma, N1 R is beta plus gamma is equals to N2 I, beta minus alpha. Okay, now N1 beta, this is beta, M O dash upon O dash C plus gamma M O dash upon O dash I, okay, is equals to N2 beta. Beta is this M O dash upon O dash C plus, minus gamma, minus alpha, this is this M O dash upon O dash O, right? Now M O dash is common over here, M O dash is common over there also. What will happen? Both will cancel out. Remaining term क्या बचेगा हमारे पास स्टूडेंट्स? N1 1 upon O dash C plus 1 upon O dash I is equals to N2 1 upon O dash C minus 1 upon O dash O. Now put the values U, V and R. N1 O dash C, use sign convention also. The distance in the direction of incident ray will be taken as positive. The distance opposite to the direction of incident ray will be taken as negative. So this is the object, this is the center of curvature, this is the image. Okay, this is represented by capital R, radius of curvature. This is U, okay, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज V। अब आप देखें यहाँ, अगर आपको R मेज़र करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर या पोल, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर या पोल से मेज़र किए जाएंगे, ये नंबर 1 था। नंबर 2, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, यही आपको बताया था। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंसिडेंट रे ये जा रही है, डिस्टेंस यहाँ से ऐसे होगा, इंसिडेंट रे ये, डिस्टेंस ये सेम है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट, डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे, R भी नेगेटिव होगा और U भी नेगेटिव होगा। 1 अपॉन O डैश C स्टार्ट यहाँ से करिए, O डैश C माइनस 1 अपॉन R प्लस O डैश I, ये O डैश I डिस्टेंस, ये इंसिडेंट रे कैसा होगा, प्लस V, 1 अपॉन प्लस V इज इक्वल्स टू N2 1 अपॉन O डैश C माइनस R, 1 अपॉन माइनस R माइनस O डैश O, यहाँ से स्टार्ट करिए, ऑपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे ये क्या होगा, माइनस U, सो इट विल बी प्लस U, ठीक है, माइनस U होगा वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करें, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, यू विल गेट
माइनस n1 अपॉन r प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल्स टू माइनस n2 अपॉन r प्लस n2 अपॉन u। n2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, n1 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ इसको आप यहाँ शिफ्ट करिए, इसे यहाँ शिफ्ट करिए, u एंड v वन साइड, r ऑन द से अदर साइड, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे n1 माइनस n1 अपॉन r, दिस विल रिमेन हियर। ओके, अगर आप इसको इस साइड शिफ्ट करना चाहें, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, n1 अपॉन v will remain here, this will shift towards this side, minus n2 upon u is equals to minus n2 upon r will remain here, this will shift over this side, plus n1 upon r. So this can be written as n1 upon v minus n2 upon u is equals to, this will be written as n1 माइनस n2 अपॉन r। ठीक है, n1 को मैंने पहले ले लिया, माइनस n2 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम एंड इमेज लाइज इन द रेयरर मीडियम। देखिए, ये रेयरर मीडियम है, इमेज, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। सेम एक्सप्रेशन है जो आपसे कहा था, माइनस n2 अपॉन यू, माइनस n2 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन v प्लस और लीव इट एज प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 अपॉन r। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस when object lies in the denser medium and image lies in the rarer medium. Okay, now draw it. Now students, very important topic of the ray optics is Lensmaker's formula. Lensmakers, क्या आपने 10th क्लास में पढ़ा है एक फॉर्मूला 1/f is equals to 1/v minus 1/u for the lens, for the convex lens or for the concave lens. That formula was the formula जो कि किसके बीच में रिलेशन है, u, v और f या रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होगा जिसमें ऐसे फॉर्मूले को जिसमें u, v, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, ये तीनों हैं, एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बाय विच द लेंस इज फॉर्म्ड, जिससे लेंस बना है। ठीक है, या वो मीडियम जिसके अंदर ये लेंस रखा है, ओके, जो कि 10th क्लास में उस फॉर्मूले में हम यूज़ नहीं करते थे। यहाँ हम वो दोनों कंडीशंस में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ द लेंस प्लस व्हाट इज़ द मीडियम इन विच द लेंस इज प्लेस्ड। इसके लिए एजम्पशंस सेम जो वीडियो नंबर 3 हम यूज़ किया है, उसका एजम्पशंस, लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज हम प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंगे, ओके। और एजम्पशंस क्या थे, लेंस इज़ कंपैरेटिवली थिन, जिसका अपर्चर भी छोटा होगा, एंगल्स सारे स्मॉल होंगे, तभी हम tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लेते हैं, sin i को i लेते हैं, ये आपने देखा अभी। तो एंगल्स मस्ट बी स्मॉल, ओके, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इमेजेस मस्ट बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको यहाँ लिखना है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या थे, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल, the distance in the direction of the incident ray will be taken as positive and vice versa। ठीक है,
and next is that height above the principal axis will be taken as positive and vice versa, that is below the principal axis. ये आपको यहाँ पर लिखना है. नाउ अब सबसे पहले जो इसका डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है डायग्राम? लेट दिस इज द लेंस, this is the convex lens, or you can say double convex lens. Okay, having refractive index outside the lens is n1, n2 is the refractive index of this medium of lens, n1 again over here. Condition is that n2 is greater than n1. n2 डेंस जो मीडियम है, सेकेंड मीडियम है, वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. दिस इज़ द फर्स्ट मीडियम, अगेन दिस इज़ द फर्स्ट मीडियम, दिस इज़ द सेकेंड मीडियम, एंड दिस इज़ अगेन द फर्स्ट मीडियम. दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश लीजिए. अब आपको यहां पर दो सरफेस दिखाई दे रही हैं. फर्स्ट सरफेस इज ए पी एंड बी. ओके, सेकंड सरफेस आपको दिखाई दे रही है ए क्यू बी. दो सरफेस हैं. क्लियर? नाउ इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट and this object, from this object light incidents on the first surface. Let this is the first surface and this is the second surface. सबसे पहले लाइट किस सरफेस पर आ रही है? ये आ रही है इस सरफेस पर. यहाँ मीडियम रेयर, ये मीडियम डेंसर. अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काम करें. सबसे पहले ये लाइट फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, और ये मानिए कि अभी ये सेकंड सरफेस नहीं है. ठीक है, ये मानिए ये सेकंड सरफेस नहीं है. डेंसर ये है, ये रेयर है. ये देखिए, ये सरफेस सेकंड सरफेस नहीं है. ये आपको किस तरह लग रहा है? पढ़ चुके हैं आप स्टूडेंट्स. ये पूरा डायग्राम आपको किस तरह लग रहा है? ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है. देखिए, लाइट रे डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है. सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है. देखिए, सी, अभी ये मानिए सेकंड सरफेस नहीं है. नाउ ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड लाइट बाय द फर्स्ट सरफेस. फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्टेड लाइट बनाइए. ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस m. दिस इज m. ड्रॉ द नॉर्मल. C1 is the normal. MC1 is the normal. C1 is the center of curvature for the first surface. इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? O डैश C1. रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा. तो दिस इज R1. ओके, R1. और ये R1 इस डायरेक्शन में होगा. रेडियस ऑफ कर्वेचर R1. डज दिस लाइट रे विल गो स्ट्रेट? क्या ये सीधी जाएगी? नहीं जाएगी. रेयर से डेंसर में जा रही है. इट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, ये होना चाहिए. इट मूव्स लाइक दिस. इट मूव्स लाइक दिस. MS will be the refracted light ray. देखें, नॉर्मल की तरफ टर्न हो जाएगी. ये ओरिजिनल पाथ है इसका, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ टर्न हो गई.
अब ये नॉर्मल की तरफ टर्न हो गई स्टूडेंट्स। नाउ S इज द पॉइंट ऑन द सेकंड सरफेस। क्लियर? S पॉइंट कहाँ है? सेकंड सरफेस पर है। अब हम ये देखें कि फर्स्ट सरफेस नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये मान के चलिए दिस इज नॉट द सरफेस, केवल लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही है। डेंसर मीडियम ये है। अब आप सेकंड सरफेस के लिए ये लाइन बनाइए, ये देखिए ये फर्स्ट सरफेस नहीं है, ये आपने कवर कर दिया। जब आपने इसे कवर कर दिया तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ है? इस सरफेस पर। लाइट यहाँ से अंदर से एस पर आ रही है, इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में। लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, ये देखिए डेंसर से अब कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। किस सरफेस के लिए? सेकंड सरफेस के लिए। हमने ये कवर कर दिया, ठीक है। ये किसकी तरह है? देखो स्टूडेंट्स, ये अगेन कॉन्वेक्स सरफेस, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में। इमेज कहाँ बन रही है? रेयर मीडियम में। हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अभी आप रे डायग्राम बनाएं। ये सेकंड सरफेस पर, इस पर नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल ये बना दिया C2। इस सरफेस का सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C2 होगा। अब ये बताएं, क्या ये स्ट्रेट जाएगा? नो। लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, इससे ये दूर जाएगी। दिस इज I, ठीक है। दिस इज द फाइनल इमेज। So in this way we can find out the final image after two refraction. Number one, refraction from the first surface, and later on refraction from the second surface. APB is the first surface, AQB is the second surface. Clear? Now use वेरियस इक्वेशंस। अलग अलग इक्वेशंस हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सरफेस को देखें। फॉर फर्स्ट सरफेस, कौन सा सरफेस फर्स्ट है स्टूडेंट्स? कौन सा सरफेस फर्स्ट है? APB सरफेस। क्लियर? पहला सरफेस, अगर इस सरफेस के लिए देखें, ये सेकंड सरफेस नहीं है, ये मान के चलिए सेकंड सरफेस नहीं है, ठीक। अगर ये सेकंड सरफेस नहीं है, देखें किसकी तरह है? कॉन्वेक्स सरफेस है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? रेयर मीडियम में। ओके, इमेज कहाँ बन रही है? डेंसर मीडियम में। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। रिफ्रैक्टेड फर्स्ट सरफेस से लाइट रे कहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है? ये। अगर ये सेकंड सरफेस ना हो, क्योंकि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? केवल फर्स्ट सरफेस, केवल ये सरफेस है, ये नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये लाइट रे कहाँ जानी चाहिए थी? ये लाइट रे कहाँ मीट करनी चाहिए थी? वेयर इट विल मीट? दिस विल मीट लाइक दिस, दिस विल गो लाइक दिस, दिस इज द पाथ, ठीक है। लेट इट इज I डैश। I डैश कब? अगर सेकंड सरफेस है ही नहीं, ये नहीं है, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, ये इसका जो नॉर्मल है वो ये है, इसकी तरफ बेंड हो गई और ये सीधी लाइट रे चली गई। कहाँ मिल रही है? I डैश पर। कब? जबकि सेकंड सरफेस नहीं है। किसकी तरह है?
convex surface when object lies in the rarer medium, image lies in the denser medium. What is the object? O. फर्स्ट सरफेस का इमेज कहाँ बनेगा? I डैश. फर्स्ट सरफेस का इमेज, फाइनल इमेज की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सरफेस का, जबकि सेकंड सरफेस मानिए नहीं है, तो फर्स्ट सरफेस की इमेज कहाँ बन रही है? I डैश. सो फॉर द फर्स्ट सरफेस ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ओ पर होगा. इमेज कहाँ होगी? कहाँ होगी? I डैश. क्लियर? दिस इज इक्वल टू व्हाट? फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस when object lies in rarer medium and image in denser medium. जब सेकंड सरफेस ना हो, केवल फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये पूरा, क्योंकि लाइट रे ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ये रिफ्रैक्ट होकर के सीधी ये जा रही है, ये लाइट रे तो फाइनल सेकंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के बाद है, केवल ये. फॉर्मूला यूज करिए. कॉन्वेक्स सरफेस, ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, इमेज लाइज इन द डेंसर मीडियम. ओके, तो क्या होगा फॉर्मूला? n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n2 अपॉन v, हियर we will use v dash because image is at I dash, minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r. This is the equation for the first surface. n2 upon v minus n1 upon u, और v की जगह हमने v dash लिया है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट सरफेस का इमेज I dash है. Now for second surface, सेकंड सरफेस की हम बात करें. कौन सा सरफेस? AQB सरफेस. ओके, अब आप AQB की बात करें. देखें, ये लिया है, फर्स्ट सरफेस नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है. ओके, तो ये लाइन इसकी, ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है स्टूडेंट. देखें, सेकंड सरफेस की, ये नहीं है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है. अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा होगा, लेकिन अब हम उसकी एक्चुअल पोजीशन तो नहीं निकाल सकते हैं. एजम्पशन में हमने क्या कहा था? सारे ऑब्जेक्ट और इमेज की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस पर. तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, ये लाइट रे ये सीधी जा रही है. इसका मतलब सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है स्टूडेंट्स? I डैश पर. ये देखें, ये आ रही है, और जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी सेकंड सरफेस से, तो यहाँ नहीं जाएगी, ये यहाँ नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी? इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल है सेकंड सरफेस का, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है फॉर द सेकंड सरफेस n2, ये मानिए आप. ठीक है, सेकंड सरफेस का नॉर्मल है. तो ये ओरिजिनल पाथ है, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द सेकंड सरफेस. टर्न हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई, कहाँ आ गई? ये I पर आ गई. सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग I डैश पर होगा, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? I पर बनेगी. फॉर द कॉन्वेक्स सरफेस ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? डेंसर मीडियम में है. तो ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स सरफेस when it is in denser medium and image in rarer medium. क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला यूज़ करिए, जो अब
आपको अभी मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था। क्या है फॉर्मूला? n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u, ओके, n1 अपॉन v इमेज माइनस n2 अपॉन v, n2 अपॉन u। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना है स्टूडेंट्स, ये भी लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सेकंड सरफेस की हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कितना है, किस पोजीशन पर है? आई डैश पर है। इमेज कहाँ है? इमेज कहाँ बन रही है? आई पर बन रही है। सेकंड सरफेस की बात कर रहा हूँ। द वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइट रे को पीछे एक्सटेंड किया और ये लाइट रे कहाँ पर मीट कर रही है? आई डैश। अब ये आई डैश पर कब मीट करेगी? अगर सेकंड सरफेस नहीं होगा। सेकंड सरफेस होने के बाद इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज द ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, but it moves away from the normal, so this will meet at the eye. For the second surface, this will act as the object distance, this, and let this is v dash, because you have already taken v dash is the image for here, but for the second surface it will act as a object. This is the v dash, and final is the v, which is the this distance up to I, because this is the image for the second surface. Okay, now, and the second surface has radius of curvature r2. तो अगर ऑब्जेक्ट ये कॉन्वेक्स सरफेस है सी, एंड ऑब्जेक्ट लाइज इन द डेंसर मीडियम, देखिए अब हम मान के चलें कि फर्स्ट सरफेस नहीं है। सी, first surface is not there, so it is just like the situation when the second surface is there only and the object lies in the denser medium. Virtual object is lies at the I dash. So the formula is for the convex surface when object lies in the denser medium and image is formed in the rarer medium. See, image is formed in the rarer medium. The formula is actual formula is n1 upon v, actual formula is n1 upon v minus n2 upon u is equals to n1 minus n2 upon r, and radius of curvature for the second surface is r2. Here it is r2. Okay, this is the actual formula. Now the object distance for the second surface is v dash, so we will replace here u by v dash, here take it as v dash, and final image is located at the v. ठीक है, v पर ही बन रहा है, बस ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? v dash पर है. Let this is equation number 2. You can modify like this also, or minus n2 minus n1 upon r. Let it is equation number 2. Right? Now add equation number 1 and equation number 2. If you will add 1 and 2, then what will happen? See, it is n2 upon v dash. It is minus n2 upon v dash. This will cancel out. Only the remaining term is n1 upon v, n1 upon v. This is cancelled out, minus n1 upon u, minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r, n2 minus n1 upon r, r1 for the first surface. इस surface का radius of curvature r1. Here for the second surface r2. Add करना है, but negative sign is here, minus n2 minus n1
upon R2. So N2 minus N1 is common. Remaining term is 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is N1 upon V minus N1 upon U. This is very important relation, and this is also called Lensmaker's formula. बहुत important relation है. N1 upon V minus N1 upon U is equals to N2 minus N1 bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2. Very important relation, and this is also called Lensmaker's formula. You can divide this expression by N1. क्या मिलेगा? 1 upon V minus 1 upon U. It is U. 1 upon V minus 1 upon U is equals to N2 upon N1 minus 1. And N2 upon N1 is 1 and 2. ठीक है? Light is moving from rarer medium to denser medium. 1 and 2 minus 1. 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is Lensmaker's formula. Now students, this is the Lensmaker's formula. N1 upon V minus N1 upon U, N2 minus N1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. ठीक है? R1 radius of curvature for the first, R2 radius of curvature of the second. इस इक्वेशन को अगर मैं N1 से डिवाइड करें, then what will happen? This will be the 1 upon V minus 1 upon U is equals to N2 upon N1 minus 1. Okay? N2 upon N1, इसे भी N1 से डिवाइड करेंगे, it will be 1 upon R1 minus 1 upon R2. Right? Or this will be written as 1 upon V minus 1 upon U, 1 and 2, or simply the refractive index of the second medium, 1 and 2, or in some books it may be written as simply N, minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. That it is equation number 1. ठीक है? Object is placed at infinity, then infinity, that is if U is equals to infinity. Object अगर infinity पर है, then where is the image formed? अगर object infinity पे है, light rays parallel आ रही हैं, तो जो image होगी वो focus पे बनेगी. Then V will be equal to F. Right? So this formula will be 1 upon F. 1 upon F is equals to minus 1 upon infinity. It is 0. It will be written as N minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. Here N is 1 and 2. Okay, remember. This is the formula, equation number 2. This is very important. 1 upon F, focal length. F is the focal length. Now, if you will compare these two, if you will compare 1 and 2, then what will happen? This is same, this is same. It means 1 upon F is equals to 1 upon V minus 1 upon U. This is the formula which you already studied in class 10th, and this is called the Lenz formula. ये कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? सिंपली लेंस फॉर्मूला. 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस. तो यहाँ से हम इस लेंस मेकर फॉर्मूले से हम लेंस फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस see the second application. This is the first application which we studied just now, how the Lenz formula comes from the Lensmaker's formula. Now the second application. Now students, we will study about the first principal focus and the second principal focus. For any convex lens, double convex lens, this will be the first principal focus
ओके किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में दिस is the first principal focus and this will be the second principal focus. Okay, focus on the left side, principal, first principal and second principal focus. Now see the two ray diagrams over here. Convex lens है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है और ये कहिए कि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है, इमेज will be located at infinity. After refraction, light will goes parallel to each other, light ray will parallel to the each other, as well as here see it is parallel to the principal axis. V is equals to infinity, V is equals to infinity, U is equals to F1, take it as F1. साइन कन्वेंशन में यूज करेंगे तो use minus F1 because light ray is moving like this. You will always measure the distance from this side, so it is minus F1. अब आप लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए. 1 upon V minus 1 upon U is equals to n minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is the lens maker formula. Use this condition. If U is equals to minus F1, if it is minus F1, then V is equals to infinity. 1 upon infinity minus F1, okay, is equals to n minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay, this will be the 0 and it is positive. So 1 upon F1 is equals to n minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. This is equation number 1. ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा और वो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इसलिए उसका नाम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. नाउ लेट अस सी द सेकंड प्रिंसिपल फोकस. Light rays are coming parallel to each other. They will meet at the focus if object is located at infinity, where image will formed at focus, and this focus is called the second principal focus. V is equals to plus F2. So use lens maker formula. Again 1 upon V minus 1 upon U is equals to n minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay. Now V is plus F2. Use the sign convention. ये distance यहाँ से measure करेंगे. So 1 upon plus F2 minus 1 upon infinity. U is located at infinity is equals to n minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. Okay. So this will be the 0. Only the remaining term is 1 upon F2 is equals to n minus 1, 1 upon R1 minus 1 upon R2. Let this is equation number 2. Now see, compare the two equations. All the things on the right hand side are equal. It means इसका मतलब 1 upon F1 is equals to 1 upon F2 और F1 is equals to F2. That is first principal focus and the second principal focus of the double convex lens. If R1 and R2 are equal, then both the principal focus, first as well as second, both are equal. Okay, this is the second conclusion. Now write it down. The third conclusion of the lens maker formula: how focal length of the double convex lens depends upon the wavelength of the light which falls on the convex lens. किसी भी डबल कॉन्वेक्स लेंस, या जरूरी नहीं डबल कॉन्वेक्स है, डबल कॉन्केव भी हो सकता है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स के लिए, डबल कॉन्केव के लिए भी, प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए भी, प्लेनो कॉन्केव. ये फॉर्मूला आप डबल
स्फेरिकल सरफेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर द डबल स्फेरिकल सरफेस। ओके, नाउ हाउ द फोकल लेंथ डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। फोकल लेंथ वेवलेंथ पर किस तरह से डिपेंड होती है? फोकल लेंथ किसी स्फेरिकल सरफेस के लिए, डबल स्फेरिकल सरफेस के लिए, अभी हमने जैसे कॉन्वेक्स लेंस देखा, इट इज़ 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 -1/r2। ओके, ये फोकल लेंथ थी। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। देखिए, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसा रिलेशन है? इट इज द इनवर्स रिलेशन। एक और फॉर्मूला है, दैट इज n is inversely proportional to the lambda square. This is also very important formula, and how the refractive index depends upon the wavelength. It is reciprocal, square of reciprocal. ठीक है, this formula is also known as Cauchy's formula. बहुत important formula है Cauchy's formula. n is inversely proportional to the lambda square. That is, अगर वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। इसको अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, therefore what will happen? f is directly proportional to the lambda square. By comparing these two, and you will get f is directly proportional to lambda. What does it mean? इसका मतलब है कि अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो फोकल लेंथ भी बढ़ेगी। अगर किसी लेंस पर आपने वायलेट की जगह रेड डाला, तो आपने वेवलेंथ बढ़ा दिया। वेवलेंथ बढ़ गया, फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। कैसे? वेवलेंथ बढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ, फोकल लेंथ बढ़ेगा। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लैम्डा इंक्रीज एंड डिक्रीज, इफ एंड डिक्रीज फोकल लेंथ विल इंक्रीज। ओके, सो दैट इज on increasing the wavelength, focal length will automatically increase. So this is the application, how the focal length of the light changes with respect to the color of the light. ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग लाइट का फोकल लेंथ चेंज होता है। एंड हाउ इट चेंजेस? लाइक दिस, इफ लैम्डा डिक्रीजेस, focal length automatically decreases. That is, it will be n-1 1/r plus 1/r. Okay, for the double convex spherical surface, or you can say n-1, okay, 2/r. This is 1/f. So f comes out to be the r/2 n-1. This is the focal length of the double convex lens if both spherical surfaces are equal. दिखाई दे रहा है कैसा है? साइन कन्वेंशन, रिजल्टेंट फोकल लेंथ n तो 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये 1 and 2 है, और 1 and 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचुरली 1 से ज़्यादा होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कैसा आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है। रिमेंबर दिस थिंग। अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, डबल स्फेरिकल कॉन्केव सरफेसेस, for double spherical concave surface, ठीक है, कॉन्केव सरफेस इस तरह का दिया हुआ है स्टूडेंट्स, राइट? ये सरफेस दिया हुआ है, लाइट ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ओके, दिस इज R1,
दिस इज R2, ठीक है। इस सरफेस का R2 इधर होगा, ओके। अब R1 कैसा होगा, इसके लिए लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे होगा, इट इज -R1। ये कैसा होगा, +R2। और अगर R1 R2 के बराबर है तो क्या होगा, लेट इट इज R। अब ये कंडीशन इसमें रखिए, 1/f इज इक्वल्स टू n-1, 1/R1, R के बराबर है, लेकिन कैसा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, माइनस में है। R1 देखिए नेगेटिव में है और R के बराबर है, इसलिए -R रख दिया हमने। -1/R2 कैसा है, पॉजिटिव है और वो भी R के बराबर है, लेट इट इज R। So it is 1/f is equals to n-1, okay, and it is 2/R with negative sign, -2/R, okay, माइनस आएगा ना, देखिए -1/R, -1/R, -2/R। So f is equals to R/-2 n-1. This is negative. Therefore, focal length of the double concave lens having double surfaces is always negative. ठीक है, डबल सरफेस के लिए कॉन्केव सरफेस दिया हुआ है, वो हमेशा नेगेटिव होगा। दूसरी चीज, अगर हम इस पे स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन। Now fifth conclusion student is, if we cut the lens vertically, या आप कॉन्केव लेंस को वर्टिकली कट करिए या कॉन्वेक्स डबल स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस को भी वर्टिकली कट करिए, किसी को भी। अभी हमने मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, डबल स्फेरिकल कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने वर्टिकली कट कर दिया है, देखें आप वर्टिकली कटेड है। इसमें अगर ये ओरिजिनल नंबर 1 कंडीशन, ये इनिशियल कंडीशन है, क्या यूज करेंगे फॉर द डबल सरफेस, लेट इट इज R1 and it is R also. If R1 and R2 are equal, it is R2, and this is the condition, R1 is equals to R2 is equals to R, दोनों बराबर हैं। R2 कैसा होगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है स्टूडेंट्स, R2 नेगेटिव होगा दिस साइड, R1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इस साइड है, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, लाइट रे इस तरह से मूव करेगी, ओके। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल्स टू n-1, 1/R1, वो तो चूंकि R के बराबर है, और R1 है कैसा, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, -1/R2, R2 भी किसके बराबर है, R के बराबर है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। सो ये ऑलरेडी अभी इसके पहले आर्टिकल में आप कर चुके हैं। देयरफॉर 1/f इज इक्वल्स टू n-1, 2/R, ओके। देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2/R, और f इज इक्वल्स टू R 2n-1। दिस इज द फोकस ऑफ द डबल स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। अब आप इसको क्या करें, वर्टिकली कट कर दिया स्टूडेंट्स, इसको वर्टिकली कट कर दिया। जब आप इसे वर्टिकली कट करेंगे, दिस सरफेस, अब आप एक सरफेस कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए ये सरफेस हमने ले लिया, ओके, ये सरफेस आपने ले लिया। दिस इज द फर्स्ट सरफेस R1 विच इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है। R2 नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, एंड इट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी
क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से लाइट रे कभी भी प्रिंसिपल फोकस पर मिलती नहीं है, हमेशा कैसी जाती है, ऑलवेज पैरेलल। तो कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी में मिलेंगी, इसलिए हम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब कहाँ क्या लेते हैं, इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस की, ध्यान करिए, दिस इज इन्फिनिटी। नाउ अप्लाई द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर दिस, 1/f dash for this is equals to n minus 1/r1 and it is r। ठीक है, r के बराबर लिया है क्योंकि r1 इज इक्वल्स टू r ओनली, आपने इनिशियली लिया ही था, दोनों सरफेस बराबर है। r2 कैसा है, नेगेटिव है, इन्फिनिटी भी है, -1/infinity। सो 1/infinity is 0, this will be the completely 0, ये पूरा टर्म 0 होगा, अकेला क्या बचेगा, 1/ और f डैश इज इक्वल्स टू, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इज इक्वल्स टू r/n-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सी, if you will divide f dash upon f dash upon f, okay, so f dash is how much, r/n-1 इंटू, इसे इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2n-1/r, ओके, दिस विल गेट कैंसल्ड, सो f dash इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, f dash is the changed focal length of the convex plano convex lens, कट करने के बाद जो बना है, यानी कट करने के बाद जो फोकल लेंथ आई है वो f dash आई है, और वो डबल होती है किससे, इनिशियल फोकल लेंथ ऑफ द डबल सरफेस, यानी इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, ओरिजिनल से डबल हो गई। देखिए ओरिजिनल ये है, f है, इससे डबल आपको f डैश होगी, मीन्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज बाय कटिंग इट वर्टिकली। जब हम उसे वर्टिकली कट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर दोनों सरफेसेस बराबर हैं, एग्जैक्टली बीच से कट करते हैं, तो फोकल लेंथ उसकी डबल हो जाएगी। सी, दिस इज द फिफ्थ कंक्लूजन, राइट इट। Sixth conclusion of lens maker's formula is when lens immersed in a liquid। लेंस को हम किसके अंदर डालें, लिक्विड के अंदर। दो कंडीशंस हम आपके सामने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द डबल कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इट इज एयर एंड इट इज ग्लास। ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। लाइट रे मूव करती है कहाँ से कहाँ, एयर टू ग्लास, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए, 1/f, ओके, इज इक्वल्स टू NAG-1, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यही बोला था स्टार्टिंग में, 1/r1 - 1/r2। दिस इज व्हेन द फोकल लेंथ, दिस इज व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड इन द एयर। इसको FA लीजिए, FA, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द एयर, ओके। And this can be written as NG/NA, जिस मीडियम में एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में आएगा, -1, 1/r1 - 1/r2, and this can be written as NG-NA/NA, 1/r1 - 1/r2,
ओके, दिस इज 1/f(a). अब बच्चों अगर हम अब लेंस को कहाँ रख रहे हैं, इफ वी पुट द लेंस इन द पर्टिकुलर लिक्विड मीडियम में हमने लेंस को रखा, अगर हम लिक्विड मीडियम में लेंस को रखेंगे then what will happen to the focal length? Now let us see. If this lens is placed in the liquid medium, it is liquid, okay, and it is glass as usual. अब हमने इस लेंस को पानी में डाल दिया, यूं कहिए तो बाहर क्या है, लिक्विड है, वाटर है या कोई और दूसरा लिक्विड है, ये तो ग्लास का बना हुआ है। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, फ्रॉम लिक्विड टू ग्लास। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखा जाएगा, N, L and G. This will be the refractive index. What will be the focal length of the lens if it is placed in the liquid? 1/FL. FL can be written as NLG -1. It is focal length when the lens is placed in the liquid. 1/R1 - 1/R2. No change in the surfaces of the lens. जो वो लेंस वहाँ एयर में रखा था वही हमने कहाँ रखा है, लिक्विड मीडियम में रखा है। क्या लिख सकते हैं, 1/FL is equals to, it can be written as Ng/NL, okay, -1, 1/R1 - 1/R2. 1/FL is equals to Ng minus NL/NL, 1/R1 minus 1/R2. This is equation number 2. This is equation number 1. Now if you will divide FL equation number 2 by equation number 1, what you will get? Divide करिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करिए। अगर आप डिवाइड करेंगे, नाउ दिस पार्ट विल बी कैंसिल्ड आउट, देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ इफ यू विल डिवाइड, what you will get, 1/FL, or you can say FA/FL, डिवाइड हमने कहाँ किसको किया है, सेकंड को किया है, तो 1/FL डिवाइडेड बाय 1/FA, FA will come in the numerator and this will be this thing Ng minus NL/NL, ठीक है, इनटू ये चीज़ न्यूमरेटर में आएगी और रिवर्स मल्टीप्लाई होकर के होगा Na/what, Ng minus Na, Ng minus Na, right? Now see this last equation. If FA/FL is equals to Na/NL, Ng minus NL/Ng minus Na. Okay. Now this is the formula, so you can write like this also, FL/FA, reverse it, is equals to NL/NA, Ng minus Na/Ng minus NL. ओके, जस्ट मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अगर मैं ये कंक्लूजन मेरा फर्स्ट है कि इफ Ng इज ग्रेटर देन Na, Ng रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो ये पूरी चीज़ कैसी आएगी, FL कैसा आएगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड कैसा आएगा, Ng ज़्यादा है NL से,
इट इज़ टेक इट एज NL, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। और नेचुरली ग्लास का एयर से तो ज़्यादा होगा ही। लिक्विड की अगर हम बात करें, सिर्फ लिक्विड की, तो लिक्विड का कम है, ग्लास का ज़्यादा है, ग्लास का ज़्यादा है, लिक्विड का कम है, तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव आएगी। ओके, दैट इज लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एट प्रेजेंट कॉन्वेक्स लेंस, convex lens is still behaving like a convex lens when it is placed in the liquid। उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कन्वर्जेंट पहले था, कन्वर्जेंट बाद में भी रहेगा। ओके, इट विल बिहेव्स लाइक्स कन्वर्जेंट। सेकेंड कंक्लूजन, अगर मैं कहूँ Ng इज इक्वल्स टू NL, क्या मतलब है? जिस लिक्विड मीडियम में आप लेंस को डाल रहे हैं, उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है, लिक्विड का भी और लेंस का भी, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, इस लिक्विड का और लेंस का जिसमें आपने डाला है ये बराबर है, तो क्या होगा? Ng और NL अगर बराबर हैं तो ये पूरा टर्म ज़ीरो होगा और 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो FL बिकम्स इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों कि एक लेंस को यदि आपने एक ऐसे मीडियम में डाला जिसकी डेंसिटी लेंस के डेंसिटी के बराबर है, NL इज इक्वल्स टू NG, और लाइट रे आपने इंसिडेंट की, तो विदाउट डेविएशन ये कैसी चली जाएगी? सीधी चली जाएगी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी, ये कहीं मीट नहीं करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये स्ट्रेट चली जाएगी। ओके, फोकल लेंथ, इसका मतलब लेंस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ओके, रिमेंबर द सेकेंड कंडीशन। Now the third condition I am writing over here. See, third condition is if Ng is less than NL, मतलब अगर Ng कम है, NL ज़्यादा है, जिस लिक्विड में आपने डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज़्यादा है, यहाँ ग्लास से भी ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा भाई? देखिए, Ng अगर कम है, Ng कम है अगर, देन व्हाट विल हैपन? ये पूरी चीज़ FL कैसा आएगा स्टूडेंट्स? FL इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉन्वेक्स की या कॉनकेव की? कॉनकेव की। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। मतलब अगर हमने यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है और Ng इज लेस देन NL, Ng कम है, लाइट रे ऐसे आ रही है कॉन्वेक्स लेंस, जिस लिक्विड में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है ग्लास से, तो ये फोकल लेंथ कैसी आ रही है? नेगेटिव। इसका मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? इट लाइक्स अ कॉनकेव लेंस, लाइट रे डाइवर्ज हो जाएंगी। ओके, तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द liquid refractive index is more. Okay, now write down all the three conditions, number 1, number 2 and number 3